بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ریاست اور عوام کے ساتھ سلمان حیدر۔ ناظرین، انتخابات کے بعد نئے جمہوری اور پارلیمانی سفر کا بالآخر اللہ اللہ کر کے آغاز ہو گیا۔ بے ضابطگیاں اور دھاندلی کے الزامات اپنی جگہ، چاروں صوبوں اور وفاق کے اراکین اسمبلی نے حلف بھی اٹھا لیا ہے اور شور شرابے اور نعروں کی گونج میں 16ویں قومی اسمبلی وجود میں بھی آ گئی۔ ایک طرف جہاں مینڈیٹ چور کے نعرے لگ رہے ہیں تو وہ دوسری جانب گھڑی چور کے بھی نعرے کم نہیں ہیں۔ ایوان میں صرف نعرے ہی نعرے گونج رہے ہیں اور ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اتحادی حکومت کو تگڑی اپوزیشن ملے گی، یعنی ٹف ٹائم یہ اپوزیشن ضرور دے گی۔ کئی جگہوں پر اتحادی بالکل خاموش بھی نظر آئے، اگر کہا کہ اگر چلے نون لیگ کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ہونے دیں، ہم بات نہیں کرتے۔ بہرحال اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا اور ایاز صادق صاحب اسپیکر بن گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ ڈپٹی اسپیکر بن گئے ہیں اور اب 3 مارچ کا انتظار ہے جب اتوار کو وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا اور شہباز شریف صاحب اور عمر ایوب صاحب کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ جہاں اسمبلیاں وجود میں آ رہی ہیں وہیں حکومت سازی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لاکھ اپوزیشن کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی سیاست کے اندر ان ہے۔ جی ہاں، انتخابات کے اندر بھی ہے، پارلیمان کے اندر بھی ہے، احتجاج کے اندر بھی ہے، یہاں تو ہے۔ ایسے میں امریکی کانگریس کے اراکین نے بائیڈن انتظامیہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے پاکستان کے عام انتخابات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کل 31 اراکین ہیں، سگنیٹری ہیں جی، اور جن کی بنا پر یہ خط لکھا گیا ہے۔ خط میں کانگریس اراکین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بائیڈن حکومت پاکستان کی نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم ہی نہ کرے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی ایک روز پہلے خط لکھا تھا اور آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا۔ یقیناً یہ نئی حکومت کے لیے ایک چیلنج ضرور ہوگا۔ آج کے پی اسمبلی میں وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہوا اور پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار، جی ہاں، علی امین گنڈا پور واضح اکثریت سے آج منتخب ہوئے۔ انہوں نے اسمبلی میں بڑی دبنگ تقریر کی، جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا 9 مئی کے حوالے سے، چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کیا، جبکہ سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی جنہوں نے انتخابات سے صرف چند روز قبل جیسی شیڈول آیا پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ہاں، پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن میں بہت عمل دخل تھا۔ تو آج بلا مقابلہ بلوچستان سے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ اسمبلی کا سیکریٹریٹ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 درخواستیں تھیں وزارت عظمیٰ کے لیے، چاروں کی چاروں درخواستوں پر صرف اور صرف بگٹی صاحب کا ہی نام تھا۔ ہے نا عام چیز، اور یہ بات اتنی سادی بھی نہیں ہے۔ یہ کاغذات کسی نے جمع کیوں نہیں کرائے، ان تمام موضوعات پر بات کرنی ہے اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، کھیلداس کوہستانی، رہنما نون لیگ، شاہدہ رحمانی، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کھولیں، آج پہلی بار بہت عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کسی صحیح پلیٹ فارم سے، یعنی ایک لیجیٹیمیٹ پلیٹ فارم یہاں کے پی کے کی اسمبلی، اس کے وزیر اعلیٰ نے جو مطالبات کیے ہیں آتے ساتھ، اور یہ تگڑی آواز کہلائے گی، ذرا وہ سن لیں پہلے۔ کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ دنیا کے تمام اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے۔ ہمارے 80% لوگوں کے تعداد مسترد ہوئے۔ یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو۔ ڈیمانڈ کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو۔ ویسے پاکستان میں سب سے زیادہ مطمئن ہے اس الیکشن پہ صرف چیف الیکشن کمشنر ہی ہے۔ اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ گفتگو کا آغاز سینیٹر ہمایوں محمد صاحب انہی سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمایوں محمد صاحب، ایک طرف جیل سے باقاعدہ پیغام اور صحافیوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں جی عمران خان صاحب کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے گفتگو نہیں کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب ایک ایکسٹریم لائن لیتے ہیں، اس کے بعد ایک عدد گول میز کانفرنس بھی بلا لیتے ہیں۔ یہ دونوں بیانیے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، یہ تیسرا بیانیہ، یہ سب چیزیں کیا عمران خان صاحب کی اجازت سے ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آئی پریزیوم کہ جو بھی آ رہا ہے وہ سچ بتا رہا ہے، اور جیسے جیسے ہم لوگوں کو جو پتہ چل رہا ہے ہم ویسے ویسے اپنا وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی چیز کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے بندے کا سٹانس کیا ہے، رسپانس کیا ہے، آپ اپنی اسٹریٹجی۔ فار ایگزامپل، میں کہتا ہوں کہ اسپنر لے کر آنا ہے لیکن اگلا آدمی اسپنر اچھا کھیل رہا ہے تو میں اس کی بجائے میں فاسٹ بالر لے آؤں گا یا کچھ اور کر لوں گا۔ تو یہ اسٹریٹجی چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر آپ ابھی دیکھیں، ابھی تک جیسے جیسے ہم لوگ اسٹریٹجیز کر رہے ہیں
وہ ساری چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں. اگر پاکستان کی یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, اگر یہ لوگ کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے تو یہ سارے مسئلے کبھی نہ ہوتے, 9 مئی بھی کبھی نہ ہوتا. کیوں؟ مارچ 2023 میں 2 صوبوں میں الیکشن ہو گئے ہوتے. اچھا, تقریباً اگست اکتوبر میں نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشنز ہو گئے ہوتے, یہ مسئلے ہی نہ ہوتے. یہ سارے مسئلوں کی جڑ جو ہے نا, ہم کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتے ہیں, جیسے مرضی بھی ہو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی کا چینج ہے, کوئی بھی جواز ڈھونڈ سر اسٹریٹجی جتنی مرضی چینج ہو, بالر سپن ریکوائرڈ ہے کہ وہ یا فاسٹ بالر, لیکن نو کا سائن تو وہی رہے گا نا, اور وائٹ کا سائن بھی وہی رہے گا. تو یہ جو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے, گول میز کانفرنس کی بات ہو رہی ہے, یہ ساری اسٹریٹجی کا چینج ہے. اچھا میں بتاتا ہوں کیا ہے. مولانا فضل الرحمان سے جو بات ہو رہی ہے وہ ایک پوائنٹ ہے. وہ ایک پوائنٹ کیا ہے؟ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. ایون اگر مولانا صاحب ہمارے خلاف کہہ رہے ہیں, ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں. علی امین نے آج اپنی میڈن سپیچ میں کہا ہے کہ میں سب سے پہلے کے پی کے حلقے کھولنے کو تیار ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ہم کوئی سیٹ ہارے ہوئے تو ہمیں حق نہیں ہے وہ لینے کا. اسی طریقے سے اگر کوئی اور ہارے ہوئے اسے بھی حق نہیں ہے لینے کا. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک میں ڈیموکریسی کو پروان چڑھانا ہے, اگر ہم نے اس ملک میں یہ لڑائیوں کو ختم کروانا ہے, اگر ہم نے اس ملک میں پولیٹیکل میرٹ کو لے کر آنا ہے, تو ہمیں فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے ہیں. اب اس کے لیے جو بھی کھڑا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اچھا, اس کے ساتھ چلنے کو کہاں تیار ہیں؟ اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ چلنے کو تیار ہیں. ہم کسی کے ساتھ حکومت بنانے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا ووٹر ہمیں ان سب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ووٹ نہیں دیتا, ان سے الگ کھڑے ہونے کا ووٹ دیتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے ہمیں فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو کہ بیسک ایشو ہے وہ لانے کے لیے, کیونکہ ہم نے 1971 میں دیکھا ہے جب فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو گئے لیکن مینڈیٹ غلط بندے کو دے دیا, ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ فری فیئر الیکشن آج کے بعد کرانا ہی نہیں ہے, آج کے بعد ہم نے پہلے سے مینیپولیٹ کرنا ہے. تو وہ الیکشن مینیپولیٹ ہونے شروع ہو گئے. 1985 میں آپ نے دیکھا انہوں نے کہا ہے ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دفع کرو, ہم ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جن کو کک نہیں آتا اور ہم ان کو لے کر چلیں گے. پھر 1990 میں ہم نے اسامہ بن لادن سے دیکھا کہ ادھر سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جو جنرل کیا نام ہوتے اپنے, انہوں نے بھی کہا ہے بیگ صاحب نے, اور انہوں نے کہ بھئی ہم نے بھی آئی جی آئی کو فنڈنگ دی. لوگوں کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آگئے, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1-1.5-2 سالوں میں بعض لوگ ہیں ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آگئے. یعنی آج بھی اسمبلی کے فلور پر اربوں روپے دینے کا الزام ہے جی. آج محمود خان اچکزئی کے جو جملے ہیں نا وہ بہت معنی خیز ہے. میں آتا ہوں بھی, اس پہ بھی آنا ہے, میں نے بات کرنی ہے. یہ کچھ بہت زیادہ نہیں, وہ تو اور بات ہے. دیکھیں اچکزئی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, میں آتا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ پیسے لیے ہیں. میں ہمایوں محمد صاحب میں آتا ہوں, فنڈ لے لینا یا قرض لے لینا, لیا تو دوسری دنیا سے ہی گیا نا, جس بھی الیکشن ٹینیور کی بات ہو رہی ہے. میں آتا ہوں. کیلداس کوئی ثانی صاحب, آج پر تو آپ لوگ مار رہے ہیں اور اچھا خاصا پھٹ پڑا بھی رہے ہیں, کوئی شک نہیں. اسمبلی کے فلور پر سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد, آپ ایم این اے بنے. اسمبلی کے فلور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اور نون لیگ کو نا اقلیت ہی لگ رہی ہے جیسے حاصل ہے. ان کو آپ کے علاوہ یہ ایک آدھا کوئی اور ہو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی لگ بھی نہیں رہا. ایون جو اتحادی ہیں جن کے ساتھ آپ نے آئینی عہدے شیئر کیے ہیں وہ بھی کوئی آواز بلند کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایک تو یہ صورت ہے. دوسرا, ایم کیو ایم کے ساتھ ایک عدد آپ نے اتحاد کیا, ریٹرن کانٹریکٹ کر لیا جی آئینی ترمیم کا. یہ کیسے ممکن ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر؟ آئینی ترمیم تو 2/3 میجورٹی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں, پہلے میں اپنے سینیٹر صاحب کے جو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے 9 مئی کی کہ اگر کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوا تھا جس کی وجوہات یہ بتا رہے ہیں اور 9 مئی ہوا, آپ بتائیں اس ملک میں مارشاء اللہ لگے,
नवाज शरीफ साहब को हथकड़ियां लगा के एक मुंतखब वजीर आजम को मार्शाला लगाया एक डिक्टेटर ने, तब भी हमने ये नहीं सोचा था, ना हमारी लीडरशिप ने, ना हमारे कारकुनों ने, कि हम GHQ में शोधा की यादगार पे हमला करें, अपने जो हमारी जो इदारे हैं उस पर हमला करें। ये आज तक नहीं हुआ। भुट्टो शहीद हो गए, उसको तख्तेदार पे चढ़ाया गया, मोहतरमा शहीद हो गई, मगर नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा वज़ीर आज़म के मनसब से हटाया गया, एक मुंतखब वज़ीर। कभी किसी ने ये सोचा तक नहीं, ना सोचेगा। ये वाहिद जमात है जो बोलेगी अगर इस तरह नहीं होगा तो हम इस तरह करेंगे, तो ये कोई जस्टिफिकेशन इनकी नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं, देखें पाकिस्तान की अवाम ने तमाम जमातों को मैंडेट दिया है, किसी एक जमात को ना 2/3 दिए, ना सादा अक्सरियत दिए कि वो अकेले फैसला करे। अगर कोई भी आइनी तरामीम हो या कानून साजी हो, ऐसा कानून जो जिस पे सब मुत्तफिक होंगे, जो अक्सरियत होगी, अब हम हुकूमत में जो है बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज आपने देखा स्पीकर की इलेक्शन में हमें 199 और 197 डिप्टी स्पीकर को पड़े हैं। तो जब हमें जो कानून साजी होगी, हम पीपल्स पार्टी, क्यू लीग और IPP, जो भी नेशनल पार्टी, जो पार्टियां हैं हमारे साथ इत्तेहाद में, हम उनसे मुशावरत के बाद जो भी कानून साजी करेंगे। कानून साजी मेजोरिटी तो आपको नहीं बनेगी ना, कानून साजी नहीं है, यानी तरमीम है ना सर। वो तो PTI से बात किए बगैर कर ही नहीं सकते आप लोग। तो वो PTI से बात करने के लिए आपको तो भी शेर अफजल मरवत की तरह गोल में कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी ना सर। देखें, जब इनकी हुकूमत थी PTI की, तब भी कोई कानून साजी हुई या तरामीम हुई तो हमने मिलके की। तो ये नहीं है, जब कौमी मामलात होते हैं या मुल्की जो होता है, जो मुल्क के लिए होता है, उस पर तमाम जमातों से जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, हम इनको साथ लेके अपोजिशन को चलेंगे। ये हमने पहले भी कहा है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि तमाम जमातें, तमाम स्टेक होल्डर मिलकर हम इस मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। और हमारे जो वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। इनका जो इनके मैंडेट है, हम उनका एहतराम करते हैं, जिस तरह भी आया है। हम इनको, आज आपने देखा इन्होंने इलेक्शन का हिस्सा लिया स्पीकर का, यही जमहूरियत है। जमहूरियत में शोर जरूर होता है, खामोशी कब्रिस्तानों में होती है। शोर ये मचाएं हम इसका, जो आपने कहा कि आपके जो कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब आते हैं, तो देखें ये बदतेजी भी, इस तरह की सियासत 4.25 साल में पाकिस्तान में कहां पहुंचाया। अगर इस तरह का ये रवैया रखेंगे तो जवाब अब वो हम जमात नहीं है। इस 2 दिन के शोर में आपका वजन भी कम लग रहा है, आपने बहुत एनर्जी लगाई है सर, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा बल्कि सब हमारे साथी जो कुलीग हैं वो थे। हम अपने कायद का इस्तकबाल भी उधर असेंबली के अंदर, और उनका अगर इस तरह की कोई हरकत करेंगे उसको जवाब। मैं शाहिदा साहबा के पास चला जाऊं। शाहिदा साहबा आज बड़ा उम्दा किस्म का, जिसको मैं खुद भी सपोर्ट करता हूं कि वाकई बल्दियाती निज़ाम तक ये पावर पहुंचे, ये CM के पास ही सारा पैसा और उसी के इस्तेहकाक ना बन जाए। ये एक अच्छी आइनी तरमीम होगी। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद इस तरमीम की कोई गुंजाइश वैसे बनती नहीं है, लेकिन फिर भी एक ज़बरदस्त किस्म का मुआहदा हो गया और रिटर्न मुआहदा हो गया मुस्लिम लीग नून के साथ। तो पीपल्स पार्टी भी इस मुआहदे में शरीक होगी। बल्दियाती आखिरी नुमाइंदे तक, काउंसलर, ज़िली काउंसिल तक ये पैसा चला जाए, ताकि हर एक को पता हो कि उसको अपने हल्के में किस तरह काम करना है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा चाहती है कि, और आपने देखा कि 18th अमेंडमेंट का सहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, जिसने सूबों को खुद मुख्तारी दी और NFC अवार्ड की शक्ल में सूबे आज ज्यादा बेहतर अंदाज से काम करें। लेकिन इससे पहले ये था कि जो 18th अमेंडमेंट के तहत आपने विफाक में वजारतें रखी हैं, उन वजारतों को आपने सूबों में मुंतकिल करना था, वो अभी तक नहीं हो सका। उस पर मुकम्मल तौर पे 18th अमेंडमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। और ये वादा था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम इसे सूबों को मुंतकिल कर देंगे, ताकि जो विफाक पर एक बर्डन है वो बहुत हद तक कम होगा और खत्म होगा। और इससे क्या होगा, जो हम फाइनेंशियली जो क्राइसिस के अंदर है उससे हम बाहर आएंगे। और रही बात जिस तरह आपने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो हम कोई भी आईनी तरमीम नहीं कर सकते। तो इस तरह के मुआहदे करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब तक आपको सोचें कि जब तक 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम
नहीं आते तो हम कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं? आप पूछ क्यों नहीं रहे? आप नून लीग से क्यों नहीं पूछ रही ना? अमेंडमेंट का आपको याद होगा कि जिस वक्त 18th अमेंडमेंट हुई, कमिटीज बनी, तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया गया यूनानिमसली, और उसके ऊपर मुख्तलिफ कमिटीज बन के और हर एक के साथ नेगोशिएशन हुई सिविल सोसाइटी। शाहिदा रहमानी साहिबा, MQM के तो मंशूर में है ना ये आईनी तरमीम करवाना। देखिए, MQM के मंशूर, आप कराची की बात करते हैं, क्या MQM ये कह दे कि हम सिर्फ कराची हैदराबाद की जमात है और इसके अलावा हमारा ताल्लुक नहीं है? एक तरफ आप MQM आप वैसे इनकारी हैं, बल्दियाती निजाम में जो बजट है वो आखिर तक तकसीम हो। कराची की सियासत क्यों करते हैं आप? पाकिस्तान जब आपके साथ लगा तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करें। ये तरमीम अगर हो गई तो पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर है ना जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई डू एग्री, लेकिन बात ये है कि आप पहले ये देखें कि आप कितनी तरमीम कर सकते हैं। अगर MQM और PMLN मिलके कर सकती है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने तमाम जमातों को मिलाना है तो उनके साथ बैठकर आपने ये आईनी तरमीम करनी होगी, क्योंकि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। अच्छा ठीक है, चलिए अब इतना तो तय हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर अच्छे तरीके से बात की जाए तो नून लीग के इस मुआहदे में जो MQM के साथ है उनको किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि जहां नून लीग से बात ना बनी वहां MQM की ऑप्शन मौजूद है, इससे क्या मतलब ले हम? देखिए, चेयरमैन साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक बात तो ये की कि हम किसी मतलब कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। दूसरी बात ये कि हमें सूबे के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए बिल्कुल MQM चूंकि सूबे सिंध से बिलोंग करती है, सूबे सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो चेयरमैन साहब के पास तमाम ऑप्शन है। उन्होंने तो पहले PTI को भी दावत दी थी कि आए बैठे, लेकिन वो तो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं। 2018 शायद PTI भूल गई कि उस वक्त जहाज भर भर के लाए जाते थे, इंडिपेंडेंट को शामिल कराया जाता था, दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर हुकूमत बनाई गई थी, और तमाम पार्टीज को जो उनके साथ इत्तेहादी थी उनमें पूछें कितनी पार्टीज थी। आज ये कह रहे हैं कि जी अवाम इसकी मैंडेट देते हैं कि आप तनतना हुकूमत बनाएं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सियासत के अंदर जातियात नहीं होती, सियासत के अंदर आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेके चलना होता है। ना सिर्फ ये बल्कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को लेकर, क्योंकि हर पार्लियामेंटेरियन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट लेकर मुंतखब होता है। तो हमें तमाम पार्लियामेंटेरियन को जमहूरियत का तकाजा है कि आप उन्हें बराबर से मराद भी दें, तमाम उनको इक्वल उनके साथ रवैया रखा जाए। ठीक है, खेलदास कोहिस्तानी साहब, मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इस बात पे इत्तफाक करते हैं जो अली अमीन गंडापुर ने आज जो तकरीर की वज़ीर आला बनने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर जुडिशल एक कमीशन बनाया जाए 9 मई के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाए, वैसे वक्त की ज़रूरत है ना ये? जी खेलदा साहब, आपसे सवाल मेरा। जी देखिए, बात यह है कि गंडापुर साहब ने जो बात की है 9 मई के हवाले से, मगर जो उसने बाकी बातें लबो लहजा जो उसका था, मैं समझता हूँ उनको जो अड्याला से हुक्म आया था वो एग्रेसिव साहब, वो उनका लहजा मैं नहीं बदल सकता, उनकी बात आप तक पहुंचा सकता हूं। क्या आप एग्री हैं जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? आप एग्री हैं इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी होना चाहिए? ये मैं कह रहा हूं। देखें, जो जितनी बदतमीजी करेगा, जो जितना एग्रेसिव होगा, वो उसको पसंद होगा। बात यह है कि ये खुद एक 9 मई का जो है मलवस है, ये खुद एक इंतशार और एक फितना है, और बदकिस्मती से इस सूबे में वो चीफ मिनिस्टर बन गया है। तो ये इनकी जो बातें हैं, ये एक मुजरिम अगर जो खुद मलवस और वो कहे कि ये हो, तो इस तरह नहीं होगा। अगर मुजरिम है तो जुडिशल कमीशन का क्यों कहेगा सर? आपको तो मानना चाहिए फिर। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि इनके ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। ये चाहता है, जिस तरह की इन्होंने धमकियां दी है, जिस तरह के वो अफसरान पे धमकियां देकर, ये उनके जो बानी था उनका भी यही रवैया था कि IG तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो इस तरह कोई इंक्वायरी नहीं होनी है। ये जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो इंक्वायरी हो रही है, उस पर हमें एतमाद होना चाहिए। अगर कोई उसमें मलवस नहीं है, उसको बिल्कुल सजा नहीं होनी चाहिए। PMLN की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि ये इस तरह करे। आप जुडिशल इंक्वायरी के हक में नहीं है ना? आप जुडिशल इंक्वायरी के हक में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी। मैं समझता हूं जो भी है कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।
जो कानून में है वो उसके तहत उनको सजाएं भी होनी चाहिए, अगर कोई बेगुनाह है उनको छोड़ा भी जाए, मगर अगर कोई मुर्तकब है उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर ऐसे शख्स के कहने पे जो शख्स खुद आज भी धमकियां दे रहा है और इन बड़े ओहदों पे छोटे आदमी बिठा के, जिस तरह सदर ममलकत एक छोटा आदमी है और बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, आइन शिकन है ये लोग आइन की बात करते हैं। आइन को इन्होंने तोड़ा है, इस जमात ने तोड़ा है, इस वजीर आज़म ने तोड़ा है, इसके सदर ने तोड़ा है, इसके डिप्टी स्पीकर ने तोड़ा है। तो उसकी सजा का तयन अगर हो जाता तो ना 9 मई होता, ना आज ये जिस तरह ये गुफ्तगू कर रहे होते। मैं समझता हूं सबसे बड़े आइन शिकन, सबसे वोट चोर, सबसे धांधली करने वाले और सबसे पहले मैंडेट चोरी करने वाली ये। अगर आपके दोस्त तो कुछ और ही कह रहे हैं ना, महमूद खान अचकज़ई साहब, वो कहते हैं कि जनाब देखिए सलमान साहब वो वफादार है, जो नहीं बिका वो गद्दार है। ये वही महमूद खान अचकज़ई है जिनकी ये नकलें उतारते थे, स्टेज पे बैठ के इनको गालियां देते थे। ये वही जमात है जो आज उसकी तकरीर पे तालियां बजा रही थी और उसको जाके गले में माफी मांगनी चाहिए इनको। अगर जुर्रत है महमूद खान अचकज़ई से माफी मांगे जो उन्होंने मजाक उड़ाया था, जो उनको गालियां दी थी। ठीक है। अच्छा, वैसे हुमायूं अहमद साहब, अचकज़ई साहब ने जो बातें की हैं बड़ी तहलका खेज बातें, उसमें उन्होंने अरबों रुपए देने की भी बात की, इमरान खान साहब की रिहाई की भी बात की, और उन्होंने कहा अभी भी पीटीआई से बैठे और जो पीटीआई के मैंडेट को ना माने वो गद्दार है। यानी अवाम ने वोट दे के उनको अगर वोट ज्यादा दिया, अगर उसको नहीं माना वो गद्दार है। ये बातें आपकी फेवर में कोई ऐसी कोई मुलाकातें हुई हैं आप लोगों की? देखिए, इस तरह है कि खाली अचकज़ई साहब ने ये बातें नहीं की, ये बातें जो एको कर रही हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कर रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहा है? यही कह रहा है बिल्कुल। जो निसार चीमा साहब है वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जिल्लत की जीत से बेहतर है इज्जत की हार। बाज लोगों को जिल्लत की जीत जो है ना वो ज्यादा पसंद है, बाज लोगों को इज्जत की हार पसंद है। अपना अपना वो है। देखिए, इन्होंने बड़ी सही बातें की हैं, बाज बातें बड़ी सही की हैं। इन्होंने कहा है कि लोग नकलें उतारते थे। अभी कोई 2-3 महीने पहले की जो कैंपेन थी उसमें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के हक में बयानात देते थे। ये नहीं कहते थे कि हम इनको ये करेंगे, हम उनको ये करेंगे। बिल्कुल सही कहते थे। जब ये लोग बात करते उसकी कि सजा होनी चाहिए, हम मानते हैं सजा होनी चाहिए। किसको? सजा उसको होनी चाहिए जिसने कुछ गलत किया है, उसको नहीं होनी चाहिए जिसने गलत नहीं किया। जो लोग पैसों के चोर थे आज वो मैंडेट की चोरी कर रहे हैं। वो कहते ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अच्छा हुमायूं साहब, मैं स्पेसिफिक अपने सवाल पे रहता हूं ना। आप महमूद खान अचकज़ई साहब की इस बात का क्या मतलब है कि जो बिक गया वो वफादार है, जो ना बिका वो गद्दार है? तो इससे मुराद हम क्या लें? मौजूदा हुकूमत लें, पीटीआई लें, किसको लें? देखिए, उन्होंने बेसिकली कहा है कि वो शख्स जो बिक गया है, बिक गया मतलब ये कि उसने पैसों की खातिर या किसी इन काइंड फेवर की खातिर अगर उसने अपनी लॉयल्टीज बदली हैं या अपना जो उसूल है वो बदला है, वो गद्दार है। नहीं, वो तो कह रहे वफादार है। वो ऑब्वियसली वो गद्दार नहीं है। वो कह रहे वफादार है आजकल। वो नहीं, वफादार है वो उस लिहाज से कह रहे ना, आप जरा समझे ना। ठीक है, चले मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक लेनी है मुझे हुमायूं भाई, ब्रेक लेनी है। और फिर मैंने आपसे वो कांग्रेस अरकान का जो 31 सिग्नेटरी हैं जी पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम ना करने के हवाले से, ये इसको पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं कहेंगे? इस पर बात करनी है हमने इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शाहिदा रहमानी साहब, आपको लगता है कि इतनी मजबूत और वोकल किस्म की अपोजिशन होने पर इत्तेहादी हुकूमत फिर भी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल पाएगी? इतनी कैपेसिटी रखती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल इस वक्त जो हुकूमत में दो बड़ी पार्टीज हैं, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों का एक वसी तजुर्बा है, ना सिर्फ हुकूमत का
हर तरह से हमने हुकूमत आपने देखा कि मुश्किल से मुश्किल हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी हुकूमत मिली हमने पाकिस्तान को बहरानों से निकाला। 2008 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली उस वक्त एक तरफ दहशतगर्दी थी, महंगाई थी, लोड शेडिंग थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थे। उस वक्त आप देखें कि उन हालात के अंदर के जब एक माशाल्लाह तवील माशाल्लाह के बाद जमहूरियत मुल्क में आई थी, उस वक्त हमने आने के साथ जो हमारा मैनिफेस्टो था उस पर इम्प्लीमेंटेशन की, हमने रिकंसिलेशन की पॉलिसी को लेके चले, हमने मिसाक़ जमहूरियत पे इम्प्लीमेंट किया, हमने 18th अमेंडमेंट दी। हमने उस वक्त जितना आपको याद होगा कि पाकिस्तान शदीद खसारे में था, उसको ना सिर्फ निकाला, ज़राअत के हवाले से पाकिस्तान को बहुत बड़ी उस वक्त अचीवमेंट हुई। शाहिदा रहमानी साहबा, मैं सवाल दोबारा एलेबोरेट कर देता हूँ। शाहिदा साहबा, ये सारी नहीं शाहिदा साहबा, तजुर्बाकार लोग इस नहीं, वक्त जब सदर आसिफ अली जरदारी नहीं शाहिदा साहबा, मुझे सवाल दोबारा करने दें, मुझे सवाल दोबारा करने दें। ये तमाम तजुर्बेकार लोग ना, ये 16 महीने भी थे ना, अभी भी वही है तजुर्बेकार लोग। सवाल प्लीज प्लीज शाहिदा साहबा प्लीज मुझे सवाल मुकम्मल करने दे। IMF से ये जो मुआहदे करके गए और उसके बाद शाहिदा साहबा प्लीज मुझे जरा सवाल मुकम्मल करने, फिर आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा मुझे, फिर आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा। हमारा यानी रियासत और अवाम है ना प्रोग्राम, तो अवाम का सवाल है, यही तजुर्बेकार लोग 16 महीने में भी थे। चीजें माजी की हो गई, एक्सेप्टेबिलिटी है, उसकी कबूलियत बड़ा मैटर करती है। पाकिस्तान में पीर साहब पगारा क्या कह रहे हैं, सुनना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं, ये भी सुनना पड़ेगा। इसके अलावा महमूद खान अचकजई क्या कह रहे हैं, वो भी सुनना पड़ेगा। पीटीआई क्या कह रही है, एएनपी कह रही है, सारे कुछ और कह रहे हैं। हाँ, यूरोपीय यूनियन क्या कह रही है, 31 सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं, जो बाइडेन को खत लिखा है। ये तमाम चीजें, ये मुझे तो आप समझा लेंगे, दुनिया को क्या समझाएंगे? देखिए, मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि हमने पहले भी किया और अब भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। और जहां तक रही इलेक्शन के हवाले से रिजर्वेशन की तहफ़्फ़ुज़ात की बात, तो ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा नहीं हुआ है। आप देखें कि 90s में इलेक्शन चुराए गए, बीबी सारी जिंदगी कहती रही, अदालतों से साबित हुआ। इसी तरीके से हमेशा जब भी इलेक्शन में 2013 में जब हुए, जब भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि इस इलेक्शन के नताइज पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम जमहूरियत को डिरेल होने नहीं देना चाहते। और यही वजह है कि उसका तसलसल पहली मर्तबा मुल्क में 2008 से 13 एक इलेक्शन जमहूरियत का टेन्योर कंप्लीट हुआ, 2013 से फिर 18 में हुआ, 18 से 24 और अब 23 होता है। अब फिर इंशाल्लाह ताला ये जमहूरी सफर होगा, इसमें नामसाइद हालात का सामना करना पड़ता है। और इस तरह की जो अपोजिशन है, आपने देखा, कल भी देखा जब वोट टेकिंग के बाद जिस तरीके का रवैया रहा पीटीआई का, ये और आज भी रहा, लेकिन हमने बड़ी खंदा पेशानी के साथ, तहम्मुल के साथ इसको बर्दाश्त किया। और जमहूरियत नाम ही है बर्दाश्त करने का, और ये बड़ा सब्र आजमा सफर है। और आपने देखा कि इसको करके इंशाल्लाह पहले भी किया और अब भी करके दिखाएंगे इस तरह के। अच्छा, इस बारी 2024 की असेंबली में सब्र कौन कर रहा है? मैं कंप्लीट कर लूं। पाकिस्तान इस वक्त जिन नामसाइद हालात से गुजर रहा है, जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है, इन सारी सिचुएशन से पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए जरूरत है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा, हुमायूं महमूद साहब, मैंने जरा सवाल करना, एक तो IMF के खत पे भी मैंने बात करनी, जिसपे आपका आज सुबह से एक स्टेटमेंट बड़ी चल रही है, जिसपे आपने कहा कि जी IMF का वफ्द ज़मान पार्क में आके खुद गारंटी दे के गया था। एक तो उसको जरा थोड़ा एलेबोरेट कर दें, और दूसरी बार जब उस वक्त मुलाकात करनी थी तो खान साहब जेल के अंदर थे, ये चीज़। लेकिन अमरीकी कांग्रेस अरकान ने, 31 कांग्रेस अरकान ने एक खत लिख के जो बाइडेन साहब को कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम ना करें। अब ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है पाकिस्तान के क्या? देखिए, इस तरह है, मैं IMF की बात पे आ जाता हूँ कि पिछले साल 2023 में जब एक बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को देना था, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं IMF के, उनका ये इस पे बहुत जोर था कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान से गारंटी लो। वो PMLN के पास नहीं गए, वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं गए, वो हुकूमत PDM के पास भी नहीं गए, उन्होंने कहा इमरान खान से लो। क्यों? उनको पता था मैंडेट इमरान खान के पास है। तो उन्होंने कहा, और जाके वो जून में मिले। जब वो जून में मिले
तो उन्होंने जब ये सारी बातें हुई तो इमरान खान ने पूछा उनसे आप चाहते क्या हो, ये बेल आउट पैकेज है क्या? उन्होंने कहा ये 3 हिस्सों में इसकी ट्रांच रिलीज होगी। पहला हिस्सा हम इस पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की गवर्नमेंट को देंगे, यानी पीडीएम को। दूसरा ट्रांच हम दिसंबर में देंगे, एक ही बात है ना, पीडीएम एक ही बात है, डिस्ट्रक्शन मूवमेंट। दूसरा हम देंगे दिसंबर में उनको देंगे जो केयर टेकर निगरान हुकूमत या को। नवंबर में देंगे केयर टेकर गवर्नमेंट है, निगरान को, और तीसरा हम देंगे इलेक्टेड को। ठीक है, तो इमरान खान ने पूछा कि इलेक्शंस हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि जी हमें यह बताया गया कि नवंबर में हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे? उन्होंने कहा ऑफ कोर्स फ्री एंड फेयर होंगे, और जिसको मैंडेट दिया जाएगा उसी को हम देंगे। अच्छा, उसके बाद जब इन्होंने पहला ट्रांच दे दिया, दूसरे ट्रांच के लिए ये लोग आए नवंबर 7 को। वहां पे इमरान खान जेल में थे, मुलाकात नहीं हो सकी। तो उसके बाद जो लोग वफद थे वापस गए, उन्होंने कहा जी इमरान खान तो जेल में, तो हम क्या करें? उन्होंने कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जोर दिया कि आप पीटीआई की लीडरशिप से मिलो। तो फिर 7 दिसंबर को जो ट्रांच रिलीज होनी थी वो नहीं रिलीज हुई। फिर उसके बाद ये दिसंबर के मिड में 16 के करीब ये लोग मिले हैं गौहर साहब से। जब गौहर साहब से मिले तो गौहर साहब ने, इमरान खान ने उनको नोट दिया, तब कहीं जाके जनवरी में 2nd ट्रांच रिलीज हुई। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? जो लेटर था उसका मकसद ये था कि जो आईएमएफ की कंडीशन थी कि जिनको मैंडेट मिला है उनको ट्रांच रिलीज करनी चाहिए, और ये ऑब्वियस बात है कि वो लोग जो चोरी करके आए हुए हैं, आप कभी नहीं कहेंगे उनको कि यार तुम मेरे बिहाफ पे जाके नेगोशिएट करो। ठीक है, आप तो पाकिस्तान के सिस्टम से बिल्कुल एतमाद उठ गया जी। कंडीशन थी। मैं वैसे अपने कुछ अवामी सवाल कर रहा हूं, मुझे एक बात पाकिस्तान के सिस्टम से एतमाद उठ गया आपका? मुझे एक बात बताएं, मैं बिल्कुल देखो, मैं एक बात बताता हूं। आप मुझे एक बात बताएं, आपने जो इलेक्शन कवरेज 8 फरवरी को की और आप देख रहे थे और आप बैठे हुए थे और आप अपने तज्जिए भी दे रहे थे, क्या आपको उस इलेक्शन जो 9 फरवरी को हुआ है उस पर एतमाद है? किसको है? किसी को नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जो महमूद अचकजई साहब कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं। पीर ऑफ पगाड़ा साहब जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? अच्छा, उसको छोड़ दें, नून लीग के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं वो क्या कह रही हैं? बड़ी सीरियस एलिगेशन। ये जो अमेरिकी कांग्रेस अरकान ने जो खत लिखा है, जब हम चले इसको बता दें, वो तो पता चल गया ना, आईएमएफ एक बॉडी है, उसने पैसे देने। सर सवाल कर रहे हैं ना, सर सवाल कर रहे हैं जरा, उसको छोड़ दे। मैं सर सवाल कर रहा हूं ना, मैं कैसे छोड़ूं? क्या कह रहे हैं अमेरिकी कांग्रेस अरकान को मैं कैसे छोड़ूं जब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबी उधर काम कर गई, जिसकी बिना पर 31 कांग्रेस अरकान ने यह कहा है कि मौजूदा हुकूमत को तस्लीम ना करें। अच्छा, वो क्या है? क्या बेसिकली उसके पीछे क्रक्स क्या है? ये इस हुकूमत को क्यों तस्लीम होना चाहिए? इस हुकूमत ने फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास मैंडेट नहीं है। नहीं, आप ये तो कहें कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों पे मुदाखलत है, आप एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले हैं ना। सुन ले भाई, हम तो अभी भी कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। हम ये तो उनको नहीं कह रहे कि आप इधर आके मुदाखलत करो। हमने ये नहीं कहा कि आप आओ हमारे साथ मिलके हमें फंडिंग दो, हमें लोगों को करो ताकि हम नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेकर आए। हम ये नहीं कह रहे कि ये करें मुदाखलत। वो अफगानिस्तान को भी तो अमेरिका तस्लीम नहीं कर रहा ना, तो आप यही कह रहे हैं। आपके एम्बेसडर को, सर जी देखिए आपके एम्बेसडर को बुला के कहा जा रहा है, और ये सुन ले, अल्फाज सुन ले, अगर आप लोगों ने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी तो हम आपके पुराने गुनाह माफ कर देंगे। अगर आपने नहीं गिराई तो फिर हमसे गिला नहीं करना। अब मुझे समझ नहीं आती, अगर प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, अगर मेरा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो दूसरा है और ये मुझे एड्रेस नहीं कर रहा, किसी और को एड्रेस कर रहा है, ये मदाखलत है। ठीक है खेलदा साहब, फेयर इलेक्शंस, फ्री और फेयर इलेक्शंस को जस्टिफाई करना, तो ये अब उनका काम है, वो करते हैं नहीं करते, ये उनका काम है। ठीक है चले, मैं खेलदास ये अपना एक इस्तबदाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उन्होंने सामने पेश किया, हम उस पर बातें आ जाए ना कि विद इन पाकिस्तान कुछ बातें भी कर लें। मौलाना साहब का स्टांस बड़ा सख्त है जी, वो किसी भी पार्लिमानी ओहदे के मामला पे वोटिंग के हवाले से बिल्कुल साइड पर रहना चाहते हैं। अपोजिशन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे। कल एक वक्त भी गया, आज मियाँ साहब से मुलाकात भी हो गई। मना लिया आप लोगों ने, मौलाना साहब को राजी कर लिया?
सलमान साहब मुझे 1 मिनट ज़रूर दे जो इन्होंने बात की है। देखें, ये वही जमात है जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का नारा, झूठा नारा लगाया, और ये साइफर का जो इन्होंने खुद भी कहा कि अमेरिका इसमें मलूस नहीं है, इनके बानी ने कहा है। और उसके बाद ये लॉबिंग वहाँ फर्म जो उन्होंने की, और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो हम ये बार बार वहाँ पे लॉबिंग करवा रहे हैं, ये इनकी मुल्क दुश्मनी के दास्तान बहुत लंबे हैं और वो कौम के सामने आने चाहिए। मगर हम एक कौम है, हमारा एक मुल्क है, और हम अपने फैसले खुद करेंगे। तो ये इनकी साजिशों से कुछ इस मुल्क को फर्क नहीं पड़ेगा, ये नुकसान देना जरूर। मेरे चाहते हैं। सवाल पे आ जाए प्लीज। ये पाकिस्तान के श्रीलंका बनाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान रहेगा। जो बात आप मौलाना साहब के हवाले से की, देखें मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, और हम उसकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। उनका एक नुक्ता नज़र है, उस पे वो बिल्कुल अपने मौक़े पे खड़े हैं। मगर हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारे आज कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब वहाँ उनसे मुलाकात हुई है, कल भी उनकी असम्बली में भी मुलाकात हुई थी। तो इंशाअल्लाह हम हम सब जमहूरी जो जमातें हैं, हम चाहते हैं इस मुल्क को, मईशत तो मुल्क की जमहूरियत को हम आगे बढ़ाएंगे। हम मौलाना साहब की रहनुमाई पहले भी लेते रहे। जमातें सारी जमहूरी हैं। सेनेटर मायूम अहमद साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब और शाहिदा रहमानी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी जमातें हैं वो सारी जमहूरियत पर यकीन रखती हैं, तभी तो है शोर शराबा, चोर और दीगर नारे, घड़ी चोर के नारे अपनी जगह पर। लेकिन यह है कि सारे प्रोसेस के अंदर तमाम जमातें शामिल हैं, अपने कैंडिडेट खड़े करके भी बाकायदा वोट दिए तो जा रहे हैं, चाहे स्पीकर का हो, डिप्टी स्पीकर का हो, और अब वजारत उज़्मा के हवाले से यही हाल सूबों का भी है। हाँ, मौलाना साहब की ये खामोशी, ANP बिल्कुल साइड पर, बेशक एक रुकन के साथ ही, ये मानी खेज़ है। इन सबको मनाना बहुत ज़रूरी है अगर पार्लियामान को चलाना ज़रूरी है। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।